Hello, students. We are doing the 12th chapter, that is biotechnology and its applications. And in this chapter, till now, we have discussed what are the applications of biotechnology in agriculture and in medicine. And today, we will conclude this chapter by doing some last topics like transgenic animals, biopiracy, and biopatents. Now students, what are transgenic animals? Transgenic animals को understand करने से पहले you must know the meaning of transgene. Transgene क्या है students? Transgene is the foreign gene which is added into an animal to genetically alter it. So transgenic animals are the animals whose genome they have been altered, जिनको हमने जेनेटिकली ऑल्टर कर दिया है, चेंज कर दिया है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन. दे आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. स्टूडेंट्स, वी हैव डन what are transgenic plants, and we have also done the examples of some transgenic plants like flavor saver tomato, that is a transgenic plant. bt cotton, it is also an example of a transgenic plant. So transgenic animals वो animals हैं जिनके genome को हमने alter किया है by the introduction of an extra foreign gene by manipulation. Transgenic animals में examples हैं students: transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows and fish. And over 95% of the transgenic animals, they are the mice. Now students, what are the benefits of transgenic animals? Why these transgenic animals they are made? What are their benefits? What are their advantages? सबसे पहला point है students, to study the regulation of genes on normal physiology and development. Second, to study the contribution of genes in the development of a disease. Third, biological products. Fourth, vaccine safety testing. And fifth is the chemical safety testing or toxicity testing. And we will be discussing all of these points one by one. So the first benefit of the transgenic animal is to study the regulation of genes on normal physiology and development. कि how the genes they are functioning, how we can regulate the function of that particular genes. इन सभी चीज़ों को study करने के लिए students transgenic animals they are being made. For example students, study of complex factors like insulin like growth factors. तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के अगर हमने फंक्शन स्टडी करने हैं तो इसके लिए क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स? जीन्स दैट ऑल्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर दे आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दे आर स्टडीड. तो उन जीन्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ऐड किया जाता है जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के फंक्शन को ऑल्टर करेंगे. सो इस तरीके से हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के फंक्शंस को स्टडी करने की कोशिश की जाती है. एंड दिस ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी, कि इस फैक्टर का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, इस फैक्टर को हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं. तो जीन्स के जो फंक्शन है on the normal physiology and development, they can be studied by making the transgenic animals. So this is the first function of the transgenic animal. सेकेंड है स्टूडेंट्स टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज. किसी भी डिजीज की डेवलपमेंट में जीन्स की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. फॉर दिस द ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर मेड, और फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर डिजाइंड टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग of how genes contribute to the development of the diseases. And they are specially made to serve as models for human diseases so that investigation of new treatments for diseases that is made possible. जितने भी experiments हैं students, they are always done on animals before they are used on human beings. तो ये जो transgenic animals हैं students, ये models का काम कर रहे हैं. They are acting as our models in order to investigate new treatments. कोई नया treatment किसी disease के अगेंस्ट अगर डिस्कवर हुआ है तो उस ट्रीटमेंट का अगर हमने इफेक्ट स्टडी करना है तो उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है स्टूडेंट डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन बींग्स पे नहीं किया जाता. इट इज़ फर्स्ट डन ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स
mostly it is done on the transgenic mice. So the transgenic animals, they are acting as the models to investigate new treatments for various human diseases like cancer हो गया, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer disease. तो इन सभी diseases के जो है स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट्स जो है, नए नए ट्रीटमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट जो है वो दे आर फाइंडिंग आउट, एंड इन ट्रीटमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन जो है स्टूडेंट्स दे दैट इज फर्स्ट डन ऑन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड देन इट इज स्टडीड ऑन द ह्यूमन beings. So this is the second benefit of the transgenic animals. Third benefit है students biological products. Transgenic animals, they are used to produce the biological products by introducing genes which are coding for a particular product. तो transgenic animals जो हैं वो कई biological products को बनाने के लिए उनको use किया जा रहा है. कैसे? उनके अंदर वो particular gene add करके, तो when that particular gene is added into the transgenic animal, वो gene अपने आप को express करती है और वो particular product जो है वो formed करती है. तो इस तरीके से कई biological प्रोडक्ट्स जो है वो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से सिंथेसाइज किए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज़ यूज टू ट्रीट द एम्फाइसीमा डिजीज. तो ये जो प्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द यूज ऑफ दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, तो इनके लिए भी वी आर यूजिंग व्हाट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. Next है students, in 1997 Rosie, this is the first transgenic cow which was produced, and this transgenic cow Rosie, it produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. 2.4 gram of protein that is present in 1 liter of the milk. So ये जो ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी, ये प्रोड्यूस की गई 1997 में, और ये प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क जो है ये प्रोड्यूस कर रही है. प्लस स्टूडेंट्स, इसके मिल्क के अंदर ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड इट इज़ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल काउ मिल्क. सो मिल्क जो है स्टूडेंट्स, काउ मिल्क जो है दैट इज सप्लीमेंटेड, उसको सप्लीमेंट किया गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसजीन इनटू इट, एंड दिस मिल्क इट इज हैविंग मोर प्रोटीन, इट इज हैविंग मोर अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन कंटेंट, सो इट इज न्यूट्रिशनली more balanced products than the natural cow milk. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है वो की जा रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. वैक्सीन, कोई वैक्सीन जो है, अगर आज कोई नया वैक्सीन बना है तो उसकी सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए इट इज़ नॉट यूज्ड ऑन ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली, इट इज़ फर्स्ट यूज्ड ऑन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक माइस जो है दैट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन. तो पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस को यूज़ किया गया था, और अगर इफ़ इट इज़ रिलायबल दे कैन रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन. तो अगर वो रिलायबल देखी जाती है कि उसके लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं ऑन द ट्रांसजेनिक माइस, देन इट्स इफेक्ट इट कैन ऑल्सो बी स्टडीड ऑन द मंकीज एज वेल. तो इस तरीके से कोई भी नया ड्रग जो है अगर कोई बना है उसके इफेक्ट को स्टडी करना है, कोई नई वैक्सीन जो है वो बनाई गई है उसके इफेक्ट को स्टडी करना है. दीज वैक्सीन्स, दीज ड्रग्स, दे आर मेड फॉर द ह्यूमन बींग्स, बट उनके इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर यूज्ड. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, इसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं स्टूडेंट्स उनको यूज़ किया जा रहा है. सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. किसी भी टॉक्सिक के इफेक्ट को स्टूडेंट्स अगर स्टडी करना है तो वो टॉक्सिक नेचुरली जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो अपनी वो टॉक्सिसिटी दिखाएगा, तो उसकी टॉक्सिसिटी को जल्दी
जल्दी स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर ऐसी जीन्स जो है वो डाली गई हैं जो उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव बनाएंगी टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस, ताकि वो अपने टॉक्सिसिटी के इफेक्ट्स जो है वो जल्दी शो करे और उस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस का जो इफेक्ट है उसे स्टडी किया जा सके इन लीस्ट टाइम। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। These transgenic animals, they are exposed to toxic substances and their effects they are studied and it gives immediate results। देखो स्टूडेंट्स, immediate results के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ट्रांसजेनिक हमने एनिमल्स बनाए हैं जिनके अंदर ऐसी जीन्स हमने डाल दी हैं जो उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव बना रही हैं टुवर्ड्स दी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ताकि हम किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का जो इफेक्ट है वो जल्दी से जल्दी स्टडी कर सकें। सो दीज आर दी वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Next है स्टूडेंट्स, what are the various examples of the ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट सुपर माउस। सुपर माउस जो है वो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है विच वॉज क्रिएटेड बाय रैल्फ ब्रिंस्टर एंड रिचर्ड पामिटर in 1982 and it was created by inserting human growth hormone gene in the mouse genome। तो माउस जीनोम के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन जो थी दैट वाज एडेड, और ये जो ट्रांसजेनिक माउस था इट वाज डबल द साइज ऑफ द नॉर्मल माउस। सो मीन्स जो जीन डाली गई, जो ग्रोथ हार्मोन जीन डाली गई है वो अपने आप को, उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। देयरफॉर द ट्रांसजेनिक माउस दैट इज द सुपर माउस वाज हैविंग डबल द साइज देन द नॉर्मल माउसेस। So this was the first transgenic animal and it was a super mouse. Next है students transgenic cows, they have been made, transgenic pigs they have been made। transgenic cows जो है उनके अंदर extra copies है of 2 types of casein genes which produce 13% more milk protein। तो ऐसे transgenic cows बनाए गए हैं which are having more casein protein in its milk content and currently the milk from these animals that is under FDA review। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनवायरो पिग्स। ट्रांसजेनिक पिग्स जो हैं वो बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, दे जो पिग्स हैं दे आर यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हार्वेस्टिंग। तो क्या किया गया है, ऐसे ट्रांसजेनिक पिग्स जो हैं वो बनाए गए हैं जिनके अंदर जीन्स ऐड की गई हैं फॉर द एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑर्गन्स। बिकॉज जब ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है तो एंटीजेंस की प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। तो ऐसे ट्रांसजेनिक पिग्स बनाए गए हैं जिनके अंदर ऐसी जीन्स डाली गई हैं विच विल फॉर्म द एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑर्गन्स। सो इस तरीके से दीज टाइप्स ऑफ पिग्स दे कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन मेम्ब्रेन कोफैक्टर प्रोटीन्स, इनके लिए भी ट्रांसजेनिक पिग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स ट्रांसजेनिक पिग्स जो है हैविंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन एंड बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जीन्स, ऐसे भी ट्रांसजेनिक पिग्स जो है वो बनाए गए हैं। एंड सच टाइप्स ऑफ पिग्स दे ग्रो लिटिल फास्टर, इनके अंदर बहुत कम सबक्यूटेनियस फैट होता है, तो ये लीनर पोक देते हैं। ठीक है, लीनर पोक देंगे विद लोअर फैट कंटेंट। तो पोक क्या होता है, पिग फ्लैश को कहते हैं, दैट इज द पोक। तो पोक जो है ऐसा पोक ट्रांसजेनिक पिग्स की हेल्प से बनाया जा रहा है विच इज हैविंग लोअर फैट कंटेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रांसजेनिक फिशेस बनाई गई हैं लाइक टिलापिया, सालमन, ट्राउट एंड कैटफिश। और ये जो फिशेस हैं दे आर ग्रोइंग 6 times faster than the wild type fish and most have extra copies of the growth hormone gene। तो ऐसी फिशेस जो है इनका साइज जो है वो 6 times लार्जर है देन दी नॉर्मल फिशेस, बिकॉज इनके अंदर कौन सी जीन डाली गई है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन जो है वो डाली गई है और ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। इट इज़ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फिशेस इन दीज ट्रांसजेनिक वंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन भी की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्लो फिश
It was a common zebra aquarium fish जिसके which was fluorescent red in color due to the insertion of red fluorescent sea coral gene. तो ये जो sea corals हैं they shine in the dark due to the presence of fluorescence genes होती हैं. तो ये fluorescence genes जो है students ये sea corals में से निकाल के इन्हें add किया गया है into the fishes. Now these fishes they are shining, they are emitting color, they are showing the process of fluorescence and they look very beautiful in the aquarium. So इस तरीके से ornamental fishes भी produce की जा रही हैं with the help of biotechnology. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रांसजेनिक शीप जो है वो प्रोड्यूस किया गया है. ट्रेसी जो है दैट इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन हर मिल्क. इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो ट्रांसजेनिक शीप्स प्रोड्यूस की गई हैं इन जिनके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 की जीन जो है वो ऐड की गई है. नाउ दिस ब्लड क्लॉट ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये जीन इन ट्रांसजेनिक शीप में एक्सप्रेस की है एंड दे हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग दिस क्लॉटिंग फैक्टर इन देयर मिल्क. तो मिल्क में से ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो सेपरेट किया जाता है और इसे जो हीमोफिलिक पेशेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है. सो इस तरीके से ट्रांसप्लांटेशंस में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशंस में, ड्रग की प्रोडक्शन में ट्रांसजेनिक शीप्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. और एक और एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स की, जो ट्रांसजेनिक शीप है उनके अंदर ऐसी बैक्टीरियल जीन्स डाली गई हैं विच विल प्रोड्यूस मोर सिस्टीन प्रोटीन. और सिस्टीन जो है स्टूडेंट्स ये जो वूल होती है, शीप वूल, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. तो अगर सिस्टीन जीन बैक्टीरिया में से निकाल के इट हैज़ बिन एडेड इनटू द ट्रांसजेनिक शीप्स तो इनका वूल कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो गया है और इस तरीके से इनकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है. सो इस तरीके से स्टूडेंट देखो हाउ टू मेक अ ट्रांसजेनिक एनिमल. ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए देखो ह्यूमन जीन जो है इट हैज़ बिन रिमूव्ड. कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन जीन या ट्रांस जीन जो हमने ऐड करनी है दैट हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम एंड इट हैज़ बिन माइक्रो इंजेक्टेड. देखो उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया है इनटू द एग ऑफ द डोनर and then that egg it is again reinserted into the host and the gene it expresses itself within the host and this host it now becomes transgenic host and the particular gene जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो वो पर्टिकुलर फैक्टर या प्रोटीन फॉर्म करती है एंड दैट फैक्टर इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन द मिल्क एंड उस मिल्क में से फिर इस फैक्टर को सेपरेट करके उसकी जो है वो कमर्शलाइजेशन जो है वो की जाती है. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे हैव बिन प्रोड्यूस एंड दे हैव बिन यूज्ड. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बायो एथिक्स. एथिकल कंसर्न्स बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा हैं. यूज़ ऑफ एनिमल्स इन साइंस दैट इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशूज़. There are some moral or ethical factors contributing to genetic मैनिपुलेशंस. तो हमेशा मतलब बायोटेक्नोलॉजी में देखो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने कितने एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं. कोई वैक्सीन है उसकी सेफ्टी को टेस्ट करना है, कोई ड्रग है उसके इफेक्ट को स्टडी करना है. वी आर नॉट डायरेक्टली यूजिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग और वैक्सीन ऑन ह्यूमन बीइंग, वी आर फर्स्ट यूजिंग इट ऑन एनिमल्स. तो इस तरीके से एनिमल्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग. सो यूज़ जो है एनिमल्स का इन साइंस दैट इज़ अ कंट्रोवर्शियल इश्यूज. कुछ हमारे मॉरल फैक्टर्स होने चाहिए, कुछ हमारे एथिक्स होने चाहिए जो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को करने में थोड़ा सा रेगुलेट करें. तो एनिमल जो वेलफेयर कंसर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल जो रॉयल सोसाइटी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स यूके दैट इज़ लुकिंग आउट फॉर एनिमल्स सिंस 1824. एंड यूज़ ऑफ एनिमल्स क्या कहती है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज सेइंग कि यूज़ ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च कॉजेज ग्रेट सफरिंग्स टू द एनिमल्स. देखो किसी एक ड्रग की हमने अगर टॉक्सिसिटी को स्टडी करना था तो हमने उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ऐसी जीन डाली ताकि वो उस ड्रग के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, उसके टॉक्सिसिटी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, वो उसकी टॉक्सिसिटी को जल्दी से जल्दी शो करे. तो मतलब वी आर नॉट
bothering about the suffering of animals for these particular research programs. तो ये चीज़ जो है ये कंसर्न होनी चाहिए. हमारी एथिक्स जो है वो हमें थोड़ा सा जो है वो अपना मॉरल जो है बिहेवियर जो है वो ठीक रखना चाहिए टुवर्ड्स दी एनिमल्स. यूजिंग एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स. अब इतने सारे फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंसुलिन है, तो वी आर मेकिंग दीज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. इट मीन्स हमने एनिमल्स को एक स्टेटस दे दिया है टू मेयर फैक्ट्रीज. So using animals for the production of pharmaceutical proteins, we reduce them to mere factories. Animals should have the same basic rights as human beings, and each biological species, it has the right to exist as a separate identifiable आइडेंटिटी. ठीक है, तो हर एक स्पीशीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी है. बायोटेक्नोलॉजी जो है ये यूनिकनेस जो है स्पीशीज़ की ये लॉस हो रही है ड्यू टू दी बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज वी आर रिमूविंग अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म और वो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं. तो जो आइडेंटिटी है हर एक स्पीशीज़ की, दैट इज़ गेटिंग लॉस्ट बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोएथिक्स हमें ये कहती है दैट वी शुड शो मोर कंसर्न टूवर्ड्स द एनिमल्स, और ज़्यादा जो है वो एनिमल्स को एक्सपोज ना किया जाए टूवर्ड्स द रिसर्च प्रोग्राम्स बाय द बायोटेक्नोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एथिकल इश्यूज में कि जेनेटिक मैनिपुलेशंस जो की जाती है, इट मे कॉज अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच एनिमल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू इकोसिस्टम. हम कब कोई भी जीन जो है किसी ऑर्गेनिज्म में से निकाल के वी आर एडिंग इनटू सम अदर ऑर्गेनिज्म, तो वी कांट नो कि आगे रिजल्ट किस तरीके का आएगा. हो सकता है कि कुछ हार्श रिजल्ट आ जाए जिसका हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी गलत असर हो. तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने सेटअप की है एक ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, GEAE, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. तो ये जो कमेटी है स्टूडेंट्स, इट मेक डिसीजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ द GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज. कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया है, वेदर इट इज़ सेफ फॉर आवर एनवायरनमेंट और नॉट, वेदर इट इज़ सेफ फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉट. तो ये सभी टेस्टिंग कौन करता है स्टूडेंट्स? GEAE करता है. एंड देन इट इज़ इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर GM क्रॉप जो होती है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है, दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट. सो GEAC है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल committee. So it make decisions about the validity of the GM research and the safety of the GM organism for the public services. नेक्स्ट स्टूडेंट्स बायो पेटेंट. बायो पेटेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? पेटेंट एक राइट है ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन. कि अगर किसी ने कोई चीज़ नई इन्वेंट की है, कोई नया ऑर्गेनिज्म उसने इन्वेंट किया और उसने देखा कि वो ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और उससे उसको कोई फ़ायदा होगा, वो काफ़ी पैसे कमा सकता है उससे, तो वो इन्वेंटर क्या करता है, वो सरकार से एक राइट ले लेगा कि मैं ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचूंगा और बाकी लोग मुझसे ये चीज़ें खरीदेंगे. सो दिस इज़ नोन एज व्हाट? पेटेंट. तो पेटेंट क्या है? एक राइट है जो कि ग्रांट किया है गवर्नमेंट ने टू एन इन्वेंटर, ताकि बाकी जो हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कमर्शियल यूज़ ना कर सकें. बट आजकल स्टूडेंट बायो पेटेंट का मतलब क्या है कि पेटेंट्स जो है वो आजकल बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ पे, किसी ने कोई ऑर्गेनिज्म नया डिस्कवर कर लिया, उसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, या किसी ने किसी ऑर्गेनिज्म को ऑल्टर कर दिया और उससे उसको कोई बेनिफिट जो है वो मिल रहा है, तो वो उस चीज़ को भी क्या करवा रहा है? पेटेंट करवा रहा है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पेटेंट करवाया जा रहा है. कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सपोज इम्पॉर्टेंट है, जैसे टर्मेरिक जो है, हल्दी जो है वो स्किन ऑइंटमेंट के तौर पे यूज़ की जाती है, तो कई टर्मेरिक को क्या करवा रहे हैं? पेटेंट करवा रहे हैं. तो इस तरीके से
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब पेटेंट करवा लिया जाता है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, बायो पेटेंट. सो आजकल पेटेंट्स जो हैं वो लिविंग बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ पे किए जा रहे हैं, एंड फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. सो बायो पेटेंट क्या हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पेटेंट करवा लेना. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इन्वेंटर क्या करता है, सरकार से एक राइट ले लेगा कि मैं ही इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसका कमर्शियल यूज़ करूँगा. सो दिस इज़ व्हाट दी बायो पेटेंट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बायो पायरेसी. बायो पायरेसी का मतलब क्या होता है कि पायरेसी मतलब चोरी. जब कोई देश किसी देश के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी करता है, रॉबरी करता है विदाउट ऑथोराइजेशन, वहाँ की जो सरकार है उसको बिना बताए वहाँ के प्रोडक्ट्स वो ले जाता है, अपने देश में लेके जाता है, और अपने देश में लेके जाने के बाद वो उसकी कमर्शियल मतलब कमर्शलाइजेशन कर रहा है, उससे खूब पैसे कमा रहा है, उसको पेटेंट करवा के, दैट इज़ नोन एज व्हाट, बायो पायरेसी. सो बायो पायरेसी दैट इज़ द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज by the multinational companies and other organization without proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment. तो जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स देखा गया है कि जो बायो पायरेसी हो कहाँ पे रही है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है. डेवलपिंग कंट्रीज दे आर वेरी पुअर बट दे आर वेरी रिच इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा है. और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है और वहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत कम है. तो जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग जो हैं जब हमारे देश में आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, तो यहाँ पे उन्हें कई ऐसे प्रोडक्ट्स मिले हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. तो दे आर टेकिंग दोज प्रोडक्ट्स टू देयर ओन कंट्रीज़. वहाँ पे जाके वो उसको पेटेंट करवा रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग much money from it, and they are not giving proper authorization. कोई उन्होंने information नहीं दी to that particular government that they are taking those resources to their own country, and they are not even giving compensatory payment to the developing countries. तो ये जो theft होता है, robbery होता है biological resources का, this is known as what, bio पायरेसी. और ऐसी बायो पायरेसी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बासमती राइस का. 1997 में स्टूडेंट्स, अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. अब स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में बासमती की लगभग 2 लाख वैरायटीज़ हैं. 30 वैरायटीज़ बासमती की हमारी जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड उनको किया गया है, उनके बारे में मेंशन किया गया है. हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी इवन इन बासमती राइस वैरायटीज़ को बहुत अच्छा जो है वो डिस्क्राइब किया गया है. तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया स्टूडेंट्स, अमेरिकन कंपनी ने अपनी एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो थी राइस की, उसको हमारी बासमती राइस के साथ क्रॉस करवाया, और जो हाइब्रिड ऑब्टेन हुआ उस हाइब्रिड को उसने एक नोवेलिटी कहा कि दिस इज़ अ न्यू वैरायटी विद अ न्यू कैरेक्टर्स, और उसने उस पर्टिकुलर वैरायटी को क्या करवा दिया, पेटेंट करवा दिया. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बायो piracy. So these are the examples of biopiracy. So this allowed the company to sell a new variety of basmati in the United States and in the abroad, and this new variety of basmati had actually been derived from the Indian farmers varieties, Indian basmati variety that was crossed with the semi-dwarf varieties that claimed as an invention or a novelty. So this is an example of biopiracy कि किस तरीके से जो हमारे resources हैं, हमारे resources को चोरी कर लिया, हमारी जो बासमती वैरायटी है उसको अपनी एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करवा के एक नई वैरायटी हाइब्रिड को नया कह देना, नोवेलिटी कह देना, न्यू इन्वेंशन कह देना. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बायो पायरेसी. और बाद में इन बायो पायरेसी के अगेंस्ट जो है स्टूडेंट्स जो है हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंड भी लिया और इस तरीके से इन पेटेंट्स को
कैंसिल भी करवाया गया है। इसी तरीके एक और एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स नीम का और टर्मेरिक का। तो ये जो यूएस है इसने जो टर्मेरिक है स्टूडेंट्स, टर्मेरिक तो काफ़ी टाइम से हमारे देश में जो है वो यूज़ किया जा रहा है एज अ हीलर। ठीक है, दूध में हल्दी डाल के देना एक बहुत फास्टर इफेक्ट होता है इसका अपने किसी भी वूंड की हीलिंग में। तो हमारे देश में तो ये चीज़ काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ की जा रही है स्टूडेंट्स, और अमेरिका ने टर्मेरिक को भी पेटेंट करवा लिया था, बट इस पेटेंट को कैंसिल करवाया गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी पेटेंट्स विच हैज़ बिन डन बाय द अमेरिका ऑन आवर प्रोडक्ट्स दैट हैज़ बिन कैंसल्ड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो नीम है एज अ डायरेक्टा इंडिका, जो ये जो स्टैंड है स्पीशीज इंडिका, इंडिका इटसेल्फ इंडिकेट कि ये जो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ नीम जो है दैट इज इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया इन अ वैरायटी ऑफ वेज दे हैव यूज्ड नीम सिंस टाइम इमेमोरियल। Indians, they have shared the knowledge of the properties of the neem with the entire world. Grace in the early 90s sought a patent from the European Patent Office on the method of controlling on plants by aid of hydrophobic extracted neem oil. तो स्टूडेंट्स यूरोपियन कंपनी ने नीम को क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। नीम का ये यूज़, जो ये नीम में से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हाइड्रोफोबिक ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, विच इज़ यूज्ड एज अ वेरी गुड बायो इंसेक्टिसाइड। तो इस प्रॉपर्टी को यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने इट गॉट इट पेटेंटेड। सो दिस पेटेंट वॉज लेटर ऑन कैंसल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपायरेसी कि किस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिच रिसोर्सेज हैं, दे हैव बीन robbed, they have been thefted by the developed countries, especially जो developed countries हैं students, वो जो because they don't have rich biodiversity, but they don't have traditional knowledge, but they have money, they have power। तो ये क्या कर रही हैं students, जो developed countries हैं वो developing countries के जो resources हैं उनको चोरी करके अपने देश में लेके जा रही हैं, और अपने देश में जाके उसको पेटेंट करवा लेती हैं, सरकार से एक राइट ले लेती हैं दैट दे आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन कमर्शियल लेवल, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमा सके और बाकी लोग जो है वो उनसे चीज़ें खरीदें। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपायरेसी। स्टूडेंट एक और जो एग्जाम्पल है बायोपायरेसी का, वो एक हमारे कंट्री का तो नहीं है, बट इट इज़ फाउंड इन अफ्रीकन, एक प्लांट है, वेस्ट अफ्रीकन प्लांट, पेंटा डाइफ्लेंड्रा ब्राजियाना। ये एक, इसमें से एक प्रोटीन निकाला जाता है स्टूडेंट्स, ब्राजीन प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है ये 2000 टाइम्स स्वीटर है देन दी शुगर। तो नेटिव्स जो हैं अफ्रीका के, वो ब्राज़ीन को यूज़ कर रहे हैं एज अ लो कैलोरी स्वीटनर फॉर सेंचुरीज, कितने सालों से यूज़ किया जा रहा है। Sometime back the gene encoding brazine was isolated, it was sequenced and it was patented in USA। और USA ने क्या किया स्टूडेंट्स कि ये जो जीन है इसको आइसोलेट किया, इसकी सीक्वेंसिंग, इसका सीक्वेंस पता लगा लिया और इसको पेटेंट करवा लिया। एंड इट इज़ प्रपोज टू ट्रांसफ़र दी ब्राज़ीन जीन, और उन्होंने इस जीन को इवन मेज़ के अंदर भी ट्रांसफ़र किया, और मेज़ ने अपने कर्नल्स में ये जो ब्राज़ीन प्रोटीन है इट हैज़ स्टार्टेड फॉर्मिंग इट। तो these kernels will then be used for the extraction of brazine। तो इस तरीके से ये जो मेज़ के कर्नल्स हैं उनमें से इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। सो दिस डेवलपमेंट वुड हैव implications फॉर कंट्रीज एक्सपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द शुगर। तो नेचुरली ये जो ब्राज़ीन प्रोटीन है ये 2000 टाइम्स स्वीटर है देन द नॉर्मल शुगर। तो इसकी देखो कितनी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। इवन जो बाकी कंट्रीज जो शुगर की एक्सपोर्टेशन कर रहे हैं वो एक्सपोर्टिंग भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो अमेरिका है वो कई डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो रिच बायो रिसोर्सेज हैं उसकी थेफ्ट कर रहा है, उसकी रॉबरी कर रहा है विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपायरेसी। और हमारे इंडिया में बायोपायरेसी के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, बासमती राइस का किया हमने, नीम का किया और टर्मेरिक का किया। ये सभी जो बायोपायरेसी है दिस हैज़ बीन डन बाय द यूरोपियन कंट्रीज and by the USA
एंड दे गॉट इट पेटेंटेड, बट हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इन पेटेंट्स को, कई पेटेंट्स को कैंसिल भी करवाया है, ऑल्दो मैनी पेटेंट्स दे हैव बिन डन। ये तो 3 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि कई चीज़ों की थेफ्ट और रॉबरी हुई है फ्रॉम आवर कंट्री। मैनी थिंग्स दे हैव बिन पेटेंटेड, बट सम ऑफ द पेटेंट्स दे हैव बिन कैंसल्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक बायोपायरेसी। सो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया व्हाट आर दी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स क्या हैं, बायो पेटेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज बायोपायरेसी। यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ बायोपेटेंट, यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के एग्जाम्पल्स भी हमें पता होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस द चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप द चैप्टर इज वेरी वेल क्लियर टू यू। सो थैंक यू टू ऑल।